So let us solve one or two more problems. Then we'll go to next term, that is Darwin term. So suppose that spin orbit. Sir, हाँ जी, there is darkness from your side. On like light कम लगती है. light कम लग रहा है? Is it? अब ठीक हो गया sir. अब ठीक है. Yes sir, yes. So you have a problem. First problem, that suppose that spin orbit interaction Hamiltonian is given. A L dot S. Spin orbit Hamiltonian is given. So to calculate, due to this spin orbit Hamiltonian, or due to the spin orbit interaction, you have P level. You have P level that will be split it into two parts. One will be P3 by 2, and there will be P half. Okay. So a spin orbit Hamiltonian or spin orbit interaction Hamiltonian is given, that causes a P level will be split into two components that is provided. The question is how much will be the splitting between these two levels, that you have to calculate. How much is the splitting between two levels P3 by 2 and P half, that you have to calculate. कर लोगे? So you have seen L dot S. What is the wave length, wavelength? Wavelength. No, you have to calculate that splitting delta E in terms of Oh, delta is splitting the Splitting, 3 by 2 h Oh. square. exactly. What is that? हाँ जी, हाँ जी. Side states. हाँ जी. States. These states. These states I'm providing some n, that is the principal quantum number. So this state I can represent like n 2p and n 2p. N 2p 3 by 2 and n 2p half. N is your principal quantum number. And that is exactly that is 3 by 2 h cross square. ये आपने याद कर लिया क्या? I think we have splitting between half to 3 by 2 is the higher term, actually the actually this thing I taught all you. the other value are cancelled. Exactly. Let us solve in details. So first of all, you have a J. J I can define L plus S, right? Okay, now if you take J dot J, it means it will be L plus S dot L plus S. J dot J, that will be your J square, that will be equals to, on the right hand side you will have L dot L, that will be L square, S dot S, that will be S square, and you will have two parts, two more terms that will be same, and if you add them, that will provide you twice L dot S, which implies that I can write that L dot S, that is nothing but J square minus L square minus S square divided by 2. So it means I can write that spin orbit Hamiltonian, that will be A by 2, and you'll have J square minus L square minus S square. The Hamiltonian, now I can calculate that spin orbit interaction energy, so that I can write psi H SO psi, right? Psi H SO psi. So that is, you have a that is a constant that will come outside, A by 2. And what is the expectation value of J square? That is nothing but J into J plus 1, right? Then you'll have H cross square
from every term you will get h cross square common. So you can write it outside of bracket also. So you'll have j square, iska expression value j into j plus 1, h cross square I have taken common, then you'll have l into l plus 1. There's the expression value of l square. And the third term, that is s into s plus 1, this is the expectation value of s square. And you can see here that spin orbit energy or interaction energy, it actually depends upon j. Why I'm saying it depends upon j? When you have taken that p state means L is fixed. And how many electrons are there actually? You have a single electron because 2p 3 by 2, which it implies that you have a single electron system. So single electron system के लिए s की value half होती है, and you have a p state that is given, it means that L is on. So L is on, S is also on, S is half. So L and S are constant. It means that this energy will be depends upon J. Now, if you remember, J can take how many values? So now J is given that 3 by 2 and 1 by 2. J is 3 by 2 and 1 by 2. So you have to calculate that J energy corresponding to, and J is 3 by 2 and 1 by 2. ये दोनों वैल्यू ही पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एस वैल्यू कितना है? हाफ है. और पी स्टेट है, इसका मतलब एल क्या है आपका? ऑन है. सो J इफ यू राइट, J क्या आएगा आपका? L plus S, that will provide you 3 by 2, and L minus S, that will provide you half. And this is this 3 by 2 is here, half is here. Sir, but what value we will consider? Predict single electron. Yes, yes, yes. Predicted. Single electron is given. You have a single electron system. Okay, it is given. It is given. Exactly. ठीक है ना जी? You have a single electron system and corresponding spin orbit Hamiltonian is provided. They ask you to calculate the splitting of p level. That is the question. How much will be the splitting of p level due to spin orbit? Yanji. For answer, which J value we will consider? No. You see, you have a before spin orbit interaction, this level will have energy. Suppose this is E naught, है ना? अब बताओ, there is an upward shift of p3 by 2 level, है ना? And इस before spin orbit interaction energy कितना है? E naught है. And let us take this splitting or this upward shift, that is, let us take some number E1. So इस लेवल का एनर्जी एक्चुअली कितना होगा बताओ, है ना? ए का बिफोर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. अब p3 by 2 का जो अपवर्ड शिफ्ट है, लेट अस टेक दिस ई ऑन. इसका मतलब क्या है? इस लेवल का जो एनर्जी होगा, दैट विल बी ई नॉट प्लस ई ऑन होगा, राइट? मतलब वो और स्प्लिट हो जाएगा क्या? 3 by 2. हाँ जी. मतलब ये समझ में नहीं, एरो जो आपने अपवर्ड, मतलब वो और स्प्लिट हो जा रहा है नहीं, ये देखो, ये आपका बिफोर कोई लेवल. That means delta is E1 plus E. नहीं, आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखो, आपका ये लेवल है, कोई एक L इक्वल्स टू ऑन का कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेवल है, और इसका एनर्जी मानो ऑफ ई नॉट है. ठीक है, इसका एनर्जी आप ई नॉट मानो. ठीक है, आप जैसे स्पिन ऑर्बिट को लगाओगे, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, L इक्वल्स टू नॉन जीरो लेवल है, तो स्पिन ऑर्बिट के कारण कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अब क्या होता है? अगर L नॉन जीरो है, दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. That will be split into two parts. हाँ जी, ये क्लियर है. ये क्लियर है? नहीं, ये तो क्लियर है. अभी मैं बताता हूँ ना, जो आप लोगों का डाउट है. अब सपोज मान लीजिए ये जो लेवल है आपका, ये कितना है? ई नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग है. अब ई नॉट से आपका जो p3 by 2 जो लेवल है, एक्चुअली किधर शिफ्ट हुआ है? अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है ना. तो सपोज मान लीजिए यहाँ से ये जो वैल्यू है, लेट अस टेक सम नंबर. आप नंबर ही ले लीजिए ना. लेट अस टेक गुड नंबर डेल्टा ई ऑन ले लीजिए इसको. तो इस लेवल का जो एनर्जी होगा p3 by 2 का, आप बताइए कितना होगा? E1 plus E naught. ई नॉट ना, मैंने डेल्टा ई ऑन लिया हूँ कि अपवर्ड शिफ्ट जो है, दैट इज, लेट अस टेक डेल्टा ई ऑन. सो इस लेवल का एनर्जी कितना लिखोगे आप?
E ई naught नॉट प्लस डेल्टा हाँ। ई ऑन लिखोगे। चौक बहुत लाइट दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ मेरी साइड से तो। काफी ब्लर हो रहा है। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। इस साइड अच्छे से शायद दिखाई देगा, मतलब वो साइड, क्लियर है। उस इस साइड साइड, मतलब स्क्रीन। ये वाला। हाँ ये स्क्रीन काफी ब्लर हो रहा है। हाँ एक मिनट, सर हाँ जी हाँ जी। सर क्या आंसर 3AH का नहीं नहीं, स्क्वायर बाय 2 आ रहा है? हाँ अभी क्लियर करने दीजिए ना। चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ये कमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइएगा कि ये क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं, है ना। एक आपका एल इक्वल्स टू ऑन स्टेट है और इसका एनर्जी है ई नॉट है, ठीक है। ये आपका स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट में। एक आपका क्या है, P3/2 होगा एंड एक आपका P हाफ होगा, ठीक है। अब ये जो अपर शिफ्ट हुआ है इसका वैल्यू आप मानिए कि डेल्टा ई ऑन है, डेल्टा ई ऑन है, तो इसका एनर्जी की क्या लिखेंगे इस लेवल का आप, दैट विल बी ई नॉट प्लस डेल्टा ई ऑन लिखेंगे आप, ठीक है। और सपोज मान लीजिए इस लेवल का डाउनवर्ड शिफ्ट जो हुआ है दैट इज डेल्टा, हाँ डेल्टा ई टू हुआ है, तो इसका एनर्जी एक्चुअली आप क्या लिखेंगे। मैं हाँ ये अज्यूम करूँ कि ये जो आपका ये जो लेवल है अनपर्टर्ब या बिफोर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, यहाँ से ये जो दूरी है दैट इज डेल्टा ई वन। इसका मतलब क्या है, इससे आप इस लेवल का जो एनर्जी है दैट इज हायर देन दिस लेवल, सो आई विल राइट द एनर्जी ऑफ दिस लेवल दैट विल बी ई नॉट प्लस सेपरेशन बिटवीन दिस टू लेवल दैट विल द एनर्जी ऑफ P3/2। और आपका जो इस लेवल का एनर्जी है द डिस्टेंस बिटवीन दैट ई नॉट एंड दिस दैट इज डेल्टा ई टू। तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब इसका एनर्जी कितना लिखोगे आप, ई नॉट माइनस डेल्टा ई टू, दैट विल बी द एनर्जी, ठीक है। अगर टोटल स्प्लिटिंग अगर पूछा जाए कि टोटल स्प्लिटिंग कितना है, सो टोटल स्प्लिटिंग क्या लिखोगे, डेल्टा ई, दैट विल बी व्हाट, डेल्टा E2। exactly that will be delta E on plus delta E2। कैसे करोगे, दिस अपर लेवल का एनर्जी माइनस ऑफ लोअर लेवल का एनर्जी, तो E naught will be cancelled and this minus of minus it will become plus, so there will be a net splitting। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम स्पिन ऑर्बिट एनर्जी एक्चुअली लिख रहे हैं ये क्या है, स्पिन ऑर्बिट अब जो एनर्जी लिख रहा हूँ ये आपका क्या है, ये आपका जो शिफ्टिंग है ये वाला पार्ट है। और जो इसका ओरिजिनल एनर्जी है वो तो हम लिख ही नहीं रहे, उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो स्प्लिटिंग आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे दैट विल नॉट डिपेंड्स अपॉन ई नॉट, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल्टा ई वन के ऊपर डिपेंड करेगा और डेल्टा ई टू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये डेल्टा ई वन कैलकुलेट आप यहाँ से कर सकते हो, जो आपने एक्सप्रेशन लिखे हो वहां से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टनियन गिवन है, एल इक्वल्स टू ऑन स्टेट गिवन है, ठीक है ना। एल इक्वल्स टू ऑन स्टेट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब स्पिन ऑर्बिट के कारण एल इक्वल्स टू ऑन मींस पी स्टेट दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, वन विल बी P3/2 अनदर विल बी P हाफ, ठीक है ना। तो P3/2 को कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा ई वन निकालना है, डेल्टा ई वन मतलब स्पिन ऑर्बिट एनर्जी व्हेन J इक्वल्स टू 3/2। अब बताओ कितना आएगा, J इक्वल्स टू 3/2 यहाँ पे रखोगे क्या मिलेगा, J इंटू J प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 5/2 दैट विल बी 15/4। और L इंटू L प्लस 1 कितना आएगा, आपका P स्टेट है, L का वैल्यू तो ऑन है, इसका मतलब आएगा 2 आएगा। और लास्ट पार्ट S इंटू S प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, S का वैल्यू हाफ है तो हाफ इंटू 3/2 राइट, 3/4, ठीक है ना। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 इंटू 2 8 and you have a 3, so if you combinedly write it it will be nothing but what, minus 11/4, 15/4 minus 11/4 कितना आएगा एक्चुअली, 1। 1 आ जाएगा, and you have 1 into h cross square by 2 that is nothing but h cross square by 2। इसका मतलब एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ESO आपने कैलकुलेट किए हो एट j equals to 3/2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपने पिक्चुरली दिखाया ना डेल्टा E1 दैट इज एक्चुअली दिस, ठीक है। तो हम जो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी लिखते हैं या आपका सपोज मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो क्या है एक्चुअली, जो आपका करेक्शन एनर्जी है
आपका ओरिजिनल एनर्जी तो उस पार्ट में है, H नॉट पार्ट में ओरिजिनल एनर्जी है, इज द करेक्टेड और सम एडिशनल पार्ट, ठीक है। So similarly, you can calculate that spin orbit energy corresponding to J equals to half. minus AH cross by So again, you will have AH cross square by 2, then J into J plus 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, J है half, J into J plus 1 3 by 4 minus 2 और S into S plus 1 कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है ना। अगेन देखो आप J इक्वल टू अगर whether it is L plus S और L minus S, क्या आप S को प्लस अप और माइनस अप लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, राइट। कल भी यही चीज बता रहा था मैं कि whether it is प्लस S और माइनस S, that doesn't matter, आपको ये आपका स्पिन का S का वैल्यू आपका हमेशा हाफ ही लिखना पड़ेगा। कभी आपने पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी माइनस हाफ होती है, वो spin is intrinsic property, that will always be some positive number. So ये आपका डिपेंड करेगा whether they are parallel और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। सो जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू है दैट में वेरी, बट स्पिन कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, हाउ मच यू आर गेटिंग, सो दिस विल बी कैंसिल्ड, राइट, दिस विल बी कैंसिल्ड, -2 into minus A H squared square. एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब बताओ माइनस ए एच क्रॉस क्या, तो नेट स्प्लिटिंग कितना होगा, minus AH square by 2. So we have to add na both of them. देखो इस तरह की है ना, so minus AH cross Half वन मिनट, ये जो स्प्लिटिंग हुआ है ये कितना है, ये वाला कितना है, This is AH square by 2 और ये वैल्यू कितना है, Minus AH squared square. माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है ना, 2 में सिर्फ स्क्वायर है माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर, तो नेट्स कितना होगा, minus AH both ना, हाँ adding both. नहीं, आपको ए कैलकुलेट करना है टोटल, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, कैसे Minus AH squared square by 2. माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2, और कोई आंसर क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 होगा, देखो सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था हाँ हाँ बोलिए क्या सर, कंफ्यूजन, यहाँ पे मुझे अब कंफ्यूजन हो E0 गया था minus delta E2 हाँ जी बोलिए क्या कंफ्यूजन है, सर। ये चीज है कि अब हम जब जैसे पहले निकालते थे डेल्टा ई अपर लेवल एनर्जी ऑफ अपर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, हाँ हाँ हाँ, है ना, तो वैसे तो ये 3 बनता है वो देखो चीज़ देखो बनती है। देखो यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया था, ये क्या डिफाइन किया था आपने, डेल्टा इवन को डिफाइन किया था, राइट, दैट वाज योर डेल्टा इवन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो आपने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, डेल्टा ई टू, और इस लेवल का एनर्जी क्या लिखा था आपने, ई नॉट माइनस डेल्टा ई टू लिखा था, राइट, ऐसे लिखा था, नहीं सर प्लीज बोर्ड के ऊपर साइड में दिखाई नहीं दे ये दे रहा है, मेरे साइड से तो नहीं एक मिनट, अब क्लियर है। So delta ion that you have obtained A H cross square by 2, right? Delta ion you have obtained A H cross square by 2. Now what I am saying, this splitting or this shift what you have defined, क्या define किया था आपने ये? डेल्टा E2 Delta E2 क्या define, delta E2 आपने क्या लिया था? E0 माइनस डेल्टा E2। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा E2 क्या होना चाहिए, जब आप E नॉट माइनस डेल्टा E2 लिख रहे हो, इसका मतलब डेल्टा E2 आपने क्या अज्यूम किया था, Minus AH squared square. माइनस समझ नहीं रहे हैं। जब आप कुछ नंबर से माइनस कर रहे हो, इसका मतलब ये नंबर आपने क्या अज्यूम किया था, ये बताइए, फिर ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर डिफाइन किया था ना,
और आपने जो स्प्लिटिंग आपको मिला है, क्या मिला है, ए माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सर ऐड करना होगा ना? दोनों को कैसे करोगे आप बताओ, बताइए। तो जब आपका इस तरह की केस है कि भाई आपका ये माइनस क्या आ रहा है आपका, यू आर गेटिंग माइनस, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो इस लेवल का जब स्प्लिटिंग का एनर्जी मिला है, तो सपोज मान लो इस लेवल का एनर्जी ई नॉट है, तो इस लेवल का एनर्जी क्या लिखोगे आप, बताइए बताइए, इसका एनर्जी क्या लिखेंगे आप, E naught plus delta E1. इसका एनर्जी क्या है, डेल्टा ई, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया वो बताइए ना आप। ए एच Log क्रॉस H square by 2. ए एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए इस लेवल का, E naught plus माइनस ए एच का स्क्वायर। ई Plus- नॉट प्लस हो जाएगा सब माइनस आ रहा है ना फिर वो। माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर। सर वहाँ तो प्लस होना चाहिए, सर वहाँ पे ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, सर ये जो हमने ई नॉट माइनस डेल्टा E2 कंसिडर किया था ना, नहीं नहीं, और हमारा डेल आप मीनिंग को समझिए ना, अगर यहाँ पे आप Okay, sir. माइनस प्लस कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि ये आपका अपवर्ड शिफ्ट होगा ना, सो दिस नंबर शुड बी सम माइनस। Sir, हाँ जी हाँ जी, is it like this that we have to add the correction term in the energy? है ना? हाँ To हाँ, that, okay. एक्चुअली बेटर ये है कि अगर जो सिंबल आपने यूज किए हो ना, वहां पे अगर माइनस डेल्टा ई टू करेंगे इसको आप, सो देन इट विल बी मोर फाइन। जैसे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, दिस इज लाइक माइनस, जैसे अपवर्ड शिफ्ट, इसके लिए आप पॉजिटिव डेल्टा ई वन को अज्यूम करो, सो देन ई नॉट प्लस डेल्टा ई वन। और इधर आपका डाउनवर्ड शिफ्ट है, तो उसको आप माइनस डेल्टा ई से करेक्ट करो, सो देन इट विल बी हाउ मच, ई नॉट माइनस डेल्टा ई टू, ठीक है ना, ई नॉट माइनस डेल्टा ई टू। इसका मतलब क्या है, जो माइनस डेल्टा ई टू दैट इज माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर, इसका मतलब डेल्टा ई टू किसके बराबर है, ए एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर है। और जो नेट स्प्लिटिंग होगा डेल्टा ई, दैट विल बी हाउ मच, डेल्टा ई वन प्लस डेल्टा ई टू, and delta E1 is how much, A H cross square by 2 plus delta E2, that is A H cross square, that will be 3 by 2 A H cross square। सर लेकिन हम मतलब एक ही चीज दो बार यूज कर रहे हैं ना। कौन सा? डेल्टा ई टू हमें क्या दिखा रहा है कि डाउनवर्ड शिफ्ट है, शिफ्ट कंपेयर टू ई नॉट। यहाँ भी हम मतलब माइनस साइन हमने डेल्टा ई टू में कंटेंट है हमारा, और यहाँ लिखते टाइम भी हम वैसा ही लिख रहे हैं, जीरो से माइनस, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट है ना। तो ये करेक्ट कैसे होगा सर, मतलब एक ही बार हम साइन कंसीडर करते हैं ना। नहीं नहीं, देखिए Sir. बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया इसको। देखिए बड़ा सिंपल है, डेल्टा यून जो है दैट विल बी सम पॉजिटिव नंबर, डेल्टा यून विल बी सम पॉजिटिव नंबर। सो ई नॉट के साथ माइनस हम सब पॉजिटिव नंबर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लेवल था वहां से आपका डाउनवर्ड शिफ्ट। जैसे सपोज मान लीजिए जो आपने करेक्शन निकाले अभी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, अब जरा बताइए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अगर इसके साथ ई नॉट के साथ ऐड करेंगे, तो एडिंग का मतलब क्या हो रहा है, एडिंग का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, करेक्ट हो रहा है वो। एडिंग का मतलब क्या है कि आपने आपका जो शिफ्ट हुआ है डाउनवर्ड नहीं हुआ ताकि अपवर्ड हुआ है। आपका ये आपका लेवल था, इसमें अगर कुछ एनर्जी आप प्लस करेंगे इसका मतलब क्या है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो ई नॉट के साथ अगर प्लस एज क्रॉस करोगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट का तो मीनिंग ना नहीं रहा यहाँ पे, बल्कि आपका ये क्या हुआ है, आपका अपवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा सिग्निफिकेंट है कि मैंने पहले माइनस नहीं माइनस को इग्नोर किया, बट बेटर इफ यू टेक माइनस साइन। सो माइनस डेल्टा ई टू का मतलब क्या हुआ है कि आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। सो ई नॉट माइनस डेल्टा ई टू signifies that there's a downward shift of level due to spin orbit coupling, और प्लस डेल्टा ई वन मतलब अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। सो ई नॉट प्लस डेल्टा ई वन इसका मतलब क्या है, नेट शिफ्ट इज अपवर्ड ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट करेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि p3/2 जो लेवल है, जैसे अपवर्ड शिफ्ट, हाउ मच अपवर्ड शिफ्ट, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2,
और जे को जो हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आफ्टर एडिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट। हाउ मच डाउनवर्ड शिफ्ट, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। और अब बताइए यहाँ से जीरो से आपका इधर का जो लेंथ है कितना है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2, और जीरो से यहाँ से इतना यहाँ का डिस्टेंस कितना है, माइनस। चलिए इसको कोऑर्डिनेट की तरह ही आप बिहेव कीजिए। सपोज मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट जो है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 है, और इसका क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। आप जरा बताइए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा। हाँ 3/2 3/2 हाँ 3/2 एच क्रॉस स्क्वायर। क्लियर है सर, हाँ जी, थैंक यू सर। इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी समझाया था। देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे आप, ए एल डॉट ए से, ठीक है। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए आपका एल स्टेट है तो ये किस पार्ट में डिवाइड होगा, P3/2 एंड P हाफ में होगा, P हाफ में होगा। तो जो नेट स्प्लिटिंग होगा डेल्टा ई जो होगा P स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 ए एच क्रॉस स्क्वायर। सपोज मान लीजिए आपका एल इक्वल्स टू टी 2, एल इक्वल्स टू 2 मतलब कौन सा स्टेट है, एल इक्वल्स टू मतलब कौन सा स्टेट है, 2। एल इक्वल्स टू टी मींस व्हाट, डी इट विल डी का क्या होगा आपका, d 5/2 एंड डी 3/2। ठीक है, तो इनके बीच में स्पिन ऑर्बिट के कारण जो स्प्लिटिंग होगा डेल्टा ई किसके बराबर होगा, 5/2 तो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको वहां पे भी सिखाया था सेल मॉडल के कारण, सेल मॉडल की डिस्कशन के टाइम, कि जो आपका हायर जे होगा दैट विल बी द करेक्शन टर्म। जैसे यहाँ पे 3/2 तो क्या होगा, 3/2 एच क्रॉस स्क्वायर, डी के कारण 5/2 एंड 3/2, तो हायर जे number will be here and you'll have h cross square. So, similarly suppose you have a l equals to 3, कौन सा क्या स्टेट है, f, f 7/2 and f 5/2, तो इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगा कितना होगा, 7/2 7/2 ये ठीक है। So you can use this this short trick also. so no need to calculate all these things. This is short trick I am telling. If you want you can calculate, ठीक है, you can use this short trick. Okay, now next term that we are going to discuss, that is your Darwin term. This term can be explained by the help of quantum electrodynamics. This term can be explained with the help of quantum electrodynamics. You know, there's something called vacuum fluctuation. Vacuum fluctuation. आपने कभी पढ़ा होगा ये टर्म, वैक्यूम फ्लक्चुएशन, कभी पढ़ा है आप लोगों ने, vacuum fluctuation. Please let us explain this term. So according to Dirac, so Dirac ने जब relativistic Schrodinger equation को solve किया था, so he obtained positive energy state as well as negative energy state, है ना, आपने पढ़ा होगा relativistic quantum mechanics में, Dirac equation में. So there is basically there is some positive energy state and there exists some negative energy state also. In negative energy state, all levels are basically filled by electrons, and that electrons basically immobile. You cannot visualize that electron, है ना, रियल लाइफ में आप कभी उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है।
or negative energy state will always be filled by electron. It's not, there's no vacant state in negative energy state. Okay. Then on the top of negative energy state, there's a vacuum level having energy value 0. Okay. And on top of vacuum level, you have a positive energy state. So basically Dirac ने जब relativistic quantum Schrodinger equation को solve किया था, he obtained negative energy state as well as positive energy state. Negative energy state will always be filled by electron. There is no vacant state, and that electrons are immobile. You cannot visualize that electron. On the other hand, the electrons on the positive energy state will be mobile. You can visualize that electron. But the positive energy state say, I mean many states will be free. I mean they are vacant. But negative energy state में ऐसा नहीं कि कोई electronic state खाली है. So if you draw that diagram, so suppose you have a some negative energy. हाँ जी हाँ जी. पॉजिटिव स्टेट का बताओ दोबारा. हाँ मैं बताता हूँ. अभी पिक्चर जब आपको ड्रॉ करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा. So this is basically negative energy state. Here the charge or carrier are immobile. It means you cannot see them. They are basically invisible. On top of that negative energy state, you have a vacuum level having energy values is 0. And this level, negative energy states, basically all states are filled. है ना, सारे स्टेट्स आपका फील्ड है. The separation between top of the negative energy and this vacuum level, that is basically 0.5 on mega electron volt. And on top of vacuum level, the first level is here, and there are many more levels are there. And these are basically positive energy state. Okay, here that carrier, they are basically mobile. They are basically, it means they are basically visible. You can experience them. This particle or that electron exist on this level. They are visible basically. So you can experience them. But this level, some of the levels are filled, some of them are vacant. The distance between the vacuum level and top of the, first positive energy state. So यहाँ से जो आपका first positive energy state है, this distance or this separation is again 0.5 on mega electron volt. ठीक है ना? अब जरा बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, can they jump to this negative energy state? क्या jump कर सकते हैं? Can you please tell me, can this electron locating at positive energy state, can they jump to negative energy state for this situation or at normal situation? क्या jump कर सकते हैं? अगर उसको हम एनर्जी 2 times of 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट देंगे तो जंप कर जाएगा. नहीं जी, हम क्यों देंगे? ये इसका एनर्जी तो अवेलेबल ज्यादा एनर्जी है, तो यहाँ से ये एनर्जी, हाँ, तो क्या जंप कर सकते हैं? एट नॉर्मल सिचुएशन दे कैन नॉट जंप बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस, so they cannot
I mean, they will follow that Pauli exclusion principle. तो यहाँ से already आपका सारे लेवल जो है they are basically filled, है ना, कि जितना एक स्टेट में रह सकते हैं उतना है उनके पास अवेलेबल. Electrons are fermions, right? So they will follow that Pauli exclusion principle. How many electron can stay? They're already there. So this electron at normal situation, they cannot jump to negative energy state because that states are already filled by electron, and electrons are fermions. They will follow Pauli exclusion principle. Okay, that's why it at normal situation that electrons locating at positive energy states, they will never come to ground state. I mean negative energy state. But electrons locating at this level at negative energy state, they can jump to positive energy state because few of the positive energy states are basically what? They are basically vacant. Vacant. हाँ, yeah, Sir? they are not basically completely. हाँ जी, हाँ जी. सर ये क्या वैक्यूम लेवल वो फर्मी लेवल है ये क्या? वैक्यूम लेवल और फर्मी लेवल क्या होती है? बोलिए. सर वही जो above which all the states are vacant in solid. No, Like, no, Fermi level. all the Like that. Fermi level. What is Fermi level? Can anyone tell me? So the energy difference between conduction band and valence band. But at 0 Kelvin, all the states are filled below Fermi level, and above it all are empty. empty. Everything you are telling, but correct I mean definition you are not telling. Fermi level is defined as topmost level at 0 Kelvin. है ना? Fermi level जो बोलते हैं हम, Fermi level is defined as topmost level at 0 Kelvin. और यहाँ पे एक लेवल है, देखो वैक्यूम लेवल का मतलब क्या है कि द लेवल हैविंग एनर्जी क्या है, वैक्यूम लेवल को एनर्जी से डिफाइन कर सकते हो कि जिस लेवल का एनर्जी क्या है, 0 है, दैट लेवल विल बी कॉल्ड वैक्यूम लेवल. ओके सर. फर्मी लेवल का मतलब क्या है? टॉप मोस्ट लेवल एट 0 केल्विन. ठीक है. और यहाँ पे वैक्यूम लेवल मतलब लेवल हैविंग एनर्जी वैल्यू 0. ओके सर. हाँ जी, अब बताओ. Topmost level, it means that topmost negative state का that will be Fermi level. हाँ जी, हाँ जी. अगर इस चीज में देखेंगे तो जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल है दैट इज फर्मी लेवल. नो नो नो, यहाँ पे आपका 0 केल्विन की बात ही नहीं चल रही है. ओके ओके. यहाँ पे फर्मी लेवल का कोई वो तो कॉन्सेप्ट सॉलिड के, यहाँ पे 0 केल्विन की बात ही नहीं चल रही है, नॉर्मल सिचुएशन की बात चल रही है. ओके सर. Whenever we are in vacuum at that time only this is possible, na sir? हाँ, वैक्यूम मींस देयर इज नो इंटरेक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी स्टेट, देखो ये आपका नेगेटिव एनर्जी स्टेट है. नेगेटिव एनर्जी से क्या जाओगे, एक लेवल आएगा जहाँ पे एनर्जी 0 है. ये तो क्या है, एनर्जी वैल्यू, दिस आर एनर्जी वैल्यू हैविंग 0 एनर्जी, सॉरी नेगेटिव एनर्जी. सो नेगेटिव से ऊपर जाओगे पॉजिटिव कुछ होता होते, मतलब ये भी आपका नेगेटिव होता जाएगा. एक लेवल आएगा जिसका एनर्जी 0 है, दैट विल बी कॉल्ड वैक्यूम लेवल. ठीक है ना. देन यू हैव गोइंग टू पॉजिटिव एनर्जी स्टेट एंड दिस आर द एक्चुअली एनर्जी लेवल और डिफाइंड एनर्जी लेवल यू विल गेट. ठीक है ना. इस तरह की जो डिराक ने जो डिराइव किया था. सो दे ऑब्टेन दिस नेगेटिव एनर्जी स्टेट एंड there's a vacuum level separation between top of the negative energy and vacuum level, that is 0.5 on. और जो आपका lowest positive energy state और vacuum level के बीच में जो separation है, that is again 0.5 on. But what I am trying to say, these are invisible. ये important चीज है कि ये जो particles है, you cannot experience them. ठीक है. You can experience them. Here all states are filled. Electron cannot jump from positive energy state to negative energy state at normal condition, but electron can jump from negative energy state to positive energy state by what? If you shine a photon having energy values greater than 1.02 MeV, then electron can jump from here to here. Is this clear? क्या इतना क्लियर है जी? Yes, sir. Okay. Now what I am trying to say that they call vacuum fluctuation. So suppose मान लीजिए आपके पास एक चेम्बर है. ये Sir? हाँ जी, हाँ जी. क्या वैक्यूम लेवल एग्जिस्ट करता है रियल में? वैक्यूम लेवल एग्जिस्ट करता है रियल लेवल में, रियल लाइफ में. यस, इट कैन एग्जिस्ट.
तो सर अपने जैसे बोर्ड का जो पोस्टुलेट था अपना कि इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जिसके एक पर्टिकुलर एनर्जी है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो इसकी तो एनर्जी 0 है और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं पाए जाएंगे, तो नहीं, ये नहीं, फिर एग्जिस्ट कैसे करेगा? हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपका सपोज मान लीजिए आपने हम लोगों ने पढ़ा था राइट कि इलेक्ट्रॉन जब कोई ऑर्बिट में है उसका एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। तो कोई सपोज मान लीजिए बाहर से कोई फोटोन आती है राइट, बाहर से कोई फोटोन आती है और जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव है, तो क्या करेगा, फोटोन का एनर्जी ऑब्जर्व करके फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, बाउंड स्टेट से कहाँ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल? हायर एनर्जी स्टेट नहीं, आप लोगों ने आई थिंक जीरो पे। एग्जैक्टली दैट जीरो इज कॉल्ड वैक्यूम। स्टेट। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैं सुन नहीं पाई। हाँ, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया था ये चीज राइट, कि सपोज मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, आई थिंक वी हैव डिस्कस मेनी टाइम, सपोज यू हैव ए K सेल एंड L सेल राइट, और सपोज मान लीजिए आपने फोटोन को एक साइन की हो, या इनके ट्रांजिशन के कारण एक सपोज मान लीजिए फोटोन निकला, और इस फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर ये बाहर चला जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? डू यू रिमेंबर वी हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? डू यू रिमेंबर? यस सर, यस हाँ, सर। तो फिर हम लोगों ने कैसे किया था इसको, कि ये इलेक्ट्रॉन पहले बाउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, फ्री होगा, फ्री मतलब क्या है, उसकी E एनर्जी equals to 0 निकालेगा। है ना, E equals to 0 दैट विल कॉल वैक्यूम लेवल है ना। सो उसके बाद फ्री होने के बाद जो होगा अवेलेबल एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया एक लेवल है, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक लेवल है, दैट विल हैव एनर्जी 0 है। आप सपोज मान लो एक आपके पास चेंबर है, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सपोज मान लो एक आपके पास चेंबर है, ठीक है, और इस चेंबर से आपने सारे पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया, सारे पार्टिकल्स, कुछ है नहीं यहाँ पे, सारे पार्टिकल्स को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, और जो लाइट है इसको भी फ्लैश आउट कर दिया। आप चेंबर में कुछ बचा है, बताइए जरा। आपके पास एक चेंबर है, चेंबर से आपने पूरा सारे पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया और फोटॉन्स को भी और लाइट को फ्लैश आउट कर दिया, अब कुछ बचा है? गिव मी आंसर, देन आई कैन प्रोसीड ना। नो 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 No, sir. नो सर, नथिंग। आपने क्या रिमूव कर दिया, ये सारे पार्टिकल को रिमूव कर दिया है, दे आर इनविजिबल, दे विल बी एग्जिस्ट। हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, ये इनविजिबल है, जब इनविजिबल है इसको कैसे आप रिमूव करोगे? तो दैट्स व्हाई Dirac said there is no perfect vacuum, परफेक्ट वैक्यूम बोल के कुछ होता ही नहीं है, there is not Dirac, Feynman said that there is no perfect vacuum exist, परफेक्ट वैक्यूम बोल के कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि they are invisible, they will always be exist, ठीक है, but you cannot see them because they are immobile। अब ये सारे पार्टिकल्स से अवेलेबल है इस चेंबर पे, आप समझने की कोशिश करो। there is something called quantization of EM field। Quantization of EM field means what? Suppose you have a harmonic oscillator system. This corresponds to n equals to 0, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 and so on। ठीक है, अब अपने सारे स्टेट्स को रिमूव करने जाओगे, सारे स्टेट्स को आपने रिमूव कर दिया है ना, स्टिल दैट 0 point energy state will be exist having energy h cross omega by 2। सर हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप बोल रहे हो कि जो ग्राउंड की एनर्जी है वो वैसे ही रहेगी ना? वो हाँ, सारे स्टेट्स को अगर रिमूव कर दोगे
that n equals to zero state will be remain as it is. सारे state will be you are removing सारे states, but this state will always be exist having energy h cross omega by 2. Same thing is here also, quantization of EM field. आपने सारे photons को remove कर दिया, still there exist some energy or some photon energy that will be h cross omega by 2. आपने सारे photon को remove कर दिया, ठीक है, still this much of energy of photon will be there. ठीक है ना? और अगर ये एनर्जी h cross omega by 2 if it is greater than 1.0 by 2 1.02 MeV अगर हो तो फिर क्या करेंगे बताओ? पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हाँ, तो फिर पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से क्या कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव स्टेट में चला गया, कैन दिस बी वैक्यूम नाउ? no, it can't. It will not be vacuum. Now what I am saying, अगर सपोज मान लो कि ये जो फोटोन है h cross omega by 2, if it is less than 1.02 MeV, still it can pump that electron from here to here. सपोज मान लो कि जो h cross omega by 2, सपोज मान लो ये जो एनर्जी है, let us take that is 0.6 mega electron volt. Still this energy will be absorbed by this electron and it will go to positive energy state. By what? How we can explain that? How we can explain that? कि अगर आपका जो बचा एनर्जी है 0 point energy that is h cross omega by 2, if it is less than 0.6 MeV, still that electron can negative energy state can go to positive energy state by absorbing this energy. You can explain this from Heisenberg uncertainty principle. Delta E into delta T equals to h cross by 2. ठीक है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन स्टेट पे जा रहा है, कितना एनर्जी वायोलेट हो रहा है, कितना एनर्जी वायोलेट हो रहा है बताओ? टेल मी इफ यू हैव एनर्जी 1.01 minus 0.6. हाँ, तो कितना आ जाएगा? ये वाला जो पोर्शन बताया डेल्टा टी What I'm saying, suppose मान लीजिए, I'm again repeating, electron is here, suppose मान लो, और it is absorbing photon having energy 0.6 MeV, and after that it can go to positive energy state. तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो कितना एनर्जी वायोलेट हुआ है? 0.42. 0.42. So delta E that is 0.42. So delta T, what does delta T is telling here? Tell me. Because of energy violation, that electron should come back to its original position within this time. आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो. सपोज मान लो दो लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. सपोज मान लो आपका दो केस है, यहाँ पे जो सपोज मान लो जो एनर्जी सेपरेशन है, सपोज मान लो आपका 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोनों केस में, ठीक है, और यहाँ पे अपने फोटोन साइन किए हो जिसका एनर्जी सपोज मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें अपने जो फोटोन साइन किए हो इसमें सपोज मान लो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपर स्टेट में जाएगा, यहाँ से भी अपर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, बट दे विल नॉट स्टे मच टाइम है, दे विल इमीडिएटली कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, है ना. तो यहाँ पे एनर्जी वायोलेशन कितना हुआ है फर्स्ट केस में? 9 million electron. 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें कितना हुआ है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन. तो दोनों केस में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पंप होगा. बट किस में क्विकली आ जाएगा? किस केस में? सेकंड केस में. सेकंड केस में क्यों? डेल्टा टी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वायोलेशन. फर्स्ट केस में एनर्जी वायोलेशन ज्यादा है, उसमें क्या होगा? डेल्टा टी का मतलब क्या है? इफ देयर इज एनर्जी वायोलेशन डेल्टा ई, द इलेक्ट्रॉन शुड बी कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन विद इन टाइम डेल्टा टी. तो जिसमें ज्यादा एनर्जी वायोलेशन है उसमें क्या होगा?
उतना ही जल्दी उसको वापस आना पड़ेगा. So energy violation is not allowed in classical physics, but quantum state in quantum state that energy violation is possible. तो ठीक है ना. तो बेसिकली जो आपका 0 पॉइंट एनर्जी होती है फोटोन का, दैट इज लेस देन 1.02 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तब भी ये जो इलेक्ट्रॉन है दे कैन गो टू व्हाट, दे कैन गो टू Positive energy state. पॉजिटिव एनर्जी स्टेट. तो जब सपोज मान लो ये आपका यहाँ से चला गया पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में चला गया, सो यहाँ पे जब पॉजिटिव में चला जाएगा यहाँ पे क्या छोड़ के चला जाएगा, Whole. whole. So you Positron. have a photon, if you represent it, your photon that will be basically converted to positron and electron. तो जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो आपको चेंबर में क्या मिलेगा, you'll have electron and positron. हाँ जी. सॉरी फॉर इंटरप्ट. सर हमने ये मतलब ये समझ में आया कि हमने सारे इलेक्ट्रॉन चेंबर में से निकाले थे, तभी भी ये इनविजिबल थे जिसके वजह से ये हुआ. लेकिन फोटोन में मतलब वो सारे मतलब सारा लाइट निकालने के बाद ही ये 0 पॉइंट क्यों रह जाता है? That I told you ना, like harmonic oscillator, कि इसका सारे एनर्जी को आपने रिमूव करना शुरू करोगे, सारे एनर्जी को आप स्टेट को रिमूव कर सकते हो, स्टिल n equals to 0 state that will be available. ये Yes. आप रिमूव नहीं कर सकते हो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा, h क्रॉस ओमेगा बाय 2. एंड सेम इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आल्सो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो. उसका भी जो लाइट इज नथिंग बट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ EM field, whatever light, everything, if you remove everything, still that n equals to 0 level will be exist having energy h cross omega by 2. ये आपका चेंबर के अंदर रह ही जाएगा, है ना, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो. Okay, ठीक है ना. आप बताओ ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आपका जो पंप हुआ है वो तो नहीं रह सकता ज्यादा टाइम तक, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बताओ. नेगेटिव एनर्जी This jumps to negative energy. नहीं, यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा, तो फिर यह विजिबल नहीं हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. क्यों जल्दी Sir, आ जाए. हाँ जी. अब एनर्जी जो है हमारी जो H2 मेगा 2 है वो हमने ग्रेटर देन ली है या लेस देन? नहीं, एक्चुअली ये लेस देन होती है, तब भी आपका ये इलेक्ट्रॉन को पंप कर सकते हैं. That we have explained, right? That we can explain from Heisenberg uncertainty principle. If there is a violation of energy is possible in quantum state or quantum system. If there is a violation of energy delta E, then that violation will be allowed only up to time delta T. Energy violation is allowed in quantum physics. ठीक है. So basically energy कम होता है 1.02. That's why whatever electron are pumping, they will immediately come to original position. जैसे आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको दिखने के लिए मिल रहा था, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पंप्ड. कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, दे विल रिकम्बाइन, नथिंग विल बी देयर. मतलब क्या है, फिर आपका वैक्यूम हो गया. फिर कुछ टाइम ये एनर्जी तो अवेलेबल है, फिर क्या करेगा, इसको पंप करेगा, अगेन यू विल सी इलेक्ट्रॉन होल. सो दिस इज कॉल्ड वैक्यूम फ्लक्चुएशन. सो नथिंग इज देयर चेंबर में कुछ नहीं है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी देयर विल बी क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन whole pair. They'll recombine and they will again create. They will create and they will recombine. So actually what is happening? When there is a creation of electron, vacuum is no longer be vacuum. When they will combine, then there will be vacuum. So vacuum is actually fluctuating. Is this clear concept? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. क्या इतना उन्होंने कैसे लेकिन ये फाइंड आउट किया, मतलब it is invisible, so how? कैसे फाइंड आउट, सारे रिमूव कर दिया ना आपने. अब कैसे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, सपोज मान लो दोनों साइड आप फील्ड लगा दो, एक साइड आप पॉजिटिव फील्ड लगा दो और एक साइड आप नेगेटिव फील्ड लगा दो, है ना. तो फिर क्या करेगा, पॉजिट्रॉन इधर आ जाएगा और इधर आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सो यू कैन बेसिकली सेपरेट देम, राइट. देन यू कैन एक्सपीरियंस, राइट, कि आपका चेंबर में कुछ नहीं है, तब भी ये वैक्यूम फ्लक्चुएशन के कारण जैसे आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होल क्रिएट हुआ है, इसको अगर सपोज मान लो आप इधर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. जब आपका इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया
तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी सेपरेटेड, राइट, एंड पॉजिट्रॉन विल बी कम टू दिस साइड, सो यू कैन एक्सपीरियंस देम आल्सो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वैक्यूम फ्लक्चुएशन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वैक्यूम फ्लक्चुएशन क्या है एक्चुअली? So that's why Feynman called there's nothing there's no perfect vacuum exist, है ना? परफेक्ट वैक्यूम कभी हो ही नहीं सकता है। क्या इतना क्लियर है? टेल मी देन आई कैन प्रोसीड ना। Yes, sir. This vacuum fluctuation, I mean this excitation of electron can also be possible by other technique। और कैसे इसको पंप कर सकते हो बताओ? जैसे सपोज मान लो इस साइड आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड लगा दो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड लगा दिया तो फिर क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन बताइए? इस साइड सपोज मान लो आपने पॉजिटिव फील्ड लगा दिया and that field is very strong, what will happen? Electron will move. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ऊपर की Electron will तरफ। come, right? And अगर सपोज मान लो ये that field जो है सपोज मान लो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको परमानेंटली यहाँ पे रखे, फिर क्या होगा? This electric field will pump but electron will not no longer be stay here, it will again come to original state। What I'm trying to say, जैसे आपका हाइड्रोजन एटम की बात चलती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है सपोज मान लो ये 10⁻11 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाम करने के लिए जो आपको चाहिए 10⁻19 वोल्ट पर सेंटीमीटर, still by this electric field electron can be pumped from here to here, but that electron will not stay long time, it will again come to नेगेटिव एनर्जी स्टेट। तो फिर क्या करेगा? कुछ टाइम यहाँ स्टे करेगा, जैसे आपका स्टे करेगा फिर you'll have no longer, I mean आपका जो वैक्यूम है that is not exist। फिर जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा there will be recombination, then there will be vacuum। So this vacuum fluctuation basically possible by two techniques, on because of 0 point energy or quantization of EM field, another is by applying electric field you can also do this process, that is vacuum fluctuation। तो vacuum fluctuation दो केस दो पॉसिबल vacuum fluctuation का दो कॉज है, वो दो है, एक आपका quantization of EM field, another is what, the existence of positive electric field, high amount of positive electric field that can also leads to creation of vacuum fluctuation। ठीक है, अब इसको जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज मान लीजिए ये आपका सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात चलती है तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, उसका जो स्ट्रेंथ होती है that is 10⁻11 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है ना, and there is an electric field experienced by this electron because of what? Because of positive charge exist inside nucleus, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? वैक्यूम है, कुछ नहीं मतलब वैक्यूम है। Because of high amount of electric field, there will be creation of electron hole pair, electron positron pair। ठीक है ना? Is this clear what I am saying? कि आपके पास आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। यू कैन सी देयर इज नथिंग एग्जिस्ट हियर, है ना, कि आपने कुछ भी नहीं रखा है आपने, तब भी बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, कुछ नहीं है मतलब क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या है? नेगेटिव स्टेट, नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल है। बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अराउंड दिस orbiting electron। So now tell me, this electron basically shielded by this charge particle. Electron and positron, they are basically charge particles. So electron basically shielded by charge particle.
So whatever potentiality is experienced because of nucleus, that will be modified. And tomorrow we are going to discuss about this. Okay. It will be reduced, na? Of course, it will be reduced, and tomorrow we are going to discuss about this. But please, ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, that you have to be clear कि कुछ नहीं, ये vacuum है, तब भी because of a high amount of electric field there will be creation of electron positron from vacuum, because that positive electric field can do this vacuum fluctuation, and vacuum fluctuation मतलब क्या है, there will be creation of electron and positron. So this orbiting electron will be shielded by this electron and positron, and there will be modification of potential whatever you have written. ठीक है? Okay, I should stop here. सर, ये क्लियर है। मुझे एक ना, मैं PYQ सॉल्व कर रही थी, उसमें से एक गेट का क्वेश्चन है, उसमें डाउट। हाँ जी, क्या डाउट है, बोलिए। क्वेश्चन रीड करो। Which of the following represent 3p radical wave function of a hydrogen atom? ओके। हमें ग्राफ दिखा है, लेकिन मुझे ये देखो ये एक्चुअली बेसिकली जो वेव फंक्शन का प्लॉटिंग है वो बेसिकली आपने हाइड्रोजन एटम में पढ़ा होगा, राइट? हाइड्रोजन एटम का पार्ट है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम का है ना वो सब चीजें। सो जो आपने पढ़ा हो ऑनेस का प्लॉटिंग किस तरह की होती है, आपका पी का डी का, है ना? तो ये एक्चुअली इसका कोई आई थिंक वेव फंक्शन लिख के आपको पता चलेगा कि उसका नेचर क्या होगा। तो पी स्टेट का कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेव फंक्शन लिखो, देन इट विल बी क्लियर। ओके, लेकिन सर वो मतलब प्रेडिक्ट कैसे करेंगे ग्राफ? नहीं, उसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पी स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा जो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन एटम में। ओके, हाँ जी, उसके बाद आप प्लॉट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। कर लोगे ना, पी एस और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन पता कर लोगे ना? हाँ, हम हाइड्रोजन एटम में वो ग्राफ Exactly. ऐसा पेरिकल आता है, वो वाला ना, पी का डोनेट शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे वेव फंक्शन पता करना पड़ेगा, एस का क्या होती है, पी का क्या होती है, डी का क्या होती है। ठीक है, दैट यू हैव लर्न इन क्वांटम मैकेनिक्स इन हाइड्रोजन एटम। इफ यू नो दैट वेव फंक्शन, देन यू कैन इजीली प्लॉट रेडियल पार्ट ना। तो रेडियल पार्ट क्या होती है देख लेना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट करना है। उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, वेव फंक्शन से पता कर सकते हो। ओके सर, आई विल सी। If you are facing any doubt, just tell me, I'll plot it tomorrow. But आपको वेव फंक्शन से पता कर सकते हो, you don't have any other option. ओके सर, थैंक यू सर।